Hello students, hope you all are doing well. Today we will read a very interesting chapter that name is Our Country. And what is our country? Our India. Okay, look at the map. Here is the map of India. So many states, so many capitals are there. It is a mix of many districts, many states, many cities. Okay, and this is the map of India, my country. India became independent on 15th August 1947. It became republic on 26 January 1950. India is the largest democratic country in the world. Every Indian has right to choose people to form a government. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और कब इंडिपेंडेंस हुई थी इसकी 15 अगस्त 1947 को। बच्चों आपको पहले पता होगा जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे ऊपर 100 साल तक रूल किया है इंडिया पर। और इंडिया उनसे कब आज़ाद हुई, कौन सी डेट को? 15 अगस्त 1947, जो कि हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इट बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और रिपब्लिक जब हम अपने रूल एंड रेगुलेशन हमने अपनी कंट्री में शुरू किए, उस डे को नाम दिया रिपब्लिक डे। और वो कब आता है बच्चों? 26 जनवरी 1950। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और अब जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स कि यहाँ पर लोगों की सरकार, जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही होता है। लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं। एवरी इंडियन हैज़ राइट टू चूज़ पीपल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। हर एक इंडियन को, इंडिया में रहने वाले जो भी सिटीज़न हैं, जो भी इंडिया के नागरिक हैं, हर एक इंडियन को हक मिला हुआ है कि वो गवर्नमेंट को चूज़ कर सके। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड वोटिंग। आपने देखा होगा, जैसे आप सुनते होगे मम्मा पापा वोट डालने जा रहे हैं, तो वो किस लिए जाते हैं? अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए। ओके, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. To govern such a big country, government at 2 levels has been formed. There are 28 states and 9 union territories in India. गवर्नमेंट जो है उसको अच्छे से चलाने के लिए, इतनी बड़ी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, लोगों को प्यार प्रेम से रखने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। और इंडिया जैसा बिग देश, बड़ा देश, इंडिया जैसे बड़े देश को चलाने के लिए एक 2 लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई है। और इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, here is a chart of state capital and language used in Indian states. First is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. What is the capital of Andhra Pradesh? Look in your book. Andhra Pradesh, and the capital is Amravati, and the language is तेलुगु एंड उर्दू। यानी जो आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो तेलुगु और उर्दू यूज़ करते हैं। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, लुक इन योर बुक एंड टेल मी द नेम ऑफ द कैपिटल। Itanagar. And which languages are used in that? Machi, Aka and Vanchu. Third is Assam. What is the capital of Assam? Dispur. And what is the language used there? कौन सी भाषा यूज होती है? Assamese. Fourth is Bihar. What is the capital of Bihar? Patna. And what are the languages used? Hindi, Urdu, Maithili, Bhojpuri. The fifth is Chhattisgarh. What is the capital of Chhattisgarh? Raipur. And which is the language used? कौन सी भाषा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? हिंदी. Next is Goa. What is the capital of Goa? Panji. And what is the language used there? मराठी और कोंकणी. गोवा के जो लोग हैं वो मराठी और कोंकणी बोलते हैं. Next is Gujarat. Look in your book and tell me the capital of Gujarat. Gandhinagar. And what is the language used there? Gujarati and Konkani. Next is Haryana. The capital of Haryana is Chandigarh and the language used is Hindi. Next is Himachal Pradesh.
द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, और कौन सी भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग? पहाड़ी एंड हिंदी। नेक्स्ट इज झारखंड। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची एंड द लैंग्वेज हिंदी एंड संथली। नेक्स्ट इज कर्नाटका। The capital of Karnataka is Bengaluru, and what are the languages used? Kannada and Konkani. Next is Kerala. The capital of Kerala is Trivandrum, and the language used is Malayalam. Next is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, the capital of Madhya Pradesh is Bhopal, and the language is Hindi. Next is Maharashtra. The capital is Mumbai, and the language is Marathi and Konkani. The next is Manipur. Manipur, what is the capital of Manipur? Imphal, और कौन सी भाषा बोलते हैं मणिपुर के लोग? मणिपुरी। नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय, द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग, और लोग वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? खासी, गारो और इंग्लिश। नेक्स्ट इज मिजोरम। द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज एजवाल, और लैंग्वेज कौन सी यूज होती है वहाँ? मीजो और इंग्लिश। नेक्स्ट इज नागालैंड। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, और कौन सी भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग? अंगामी, सीमा और लोथा। नेक्स्ट इज ओडिशा। द लैंग्वेज इज ओडिया, एंड द कैपिटल इज भुवनेश्वर। Come to the next. Next is Punjab. The capital of Punjab is Chandigarh, or the language is Punjabi and Hindi. Next is Rajasthan. What is the capital of Rajasthan? Jaipur. And what are the languages used? Rajasthani, Hindi and Mewari. Next is Sikkim. सिक्किम, क्या है सिक्किम की कैपिटल? गैंगटोक, और कौन सी भाषा यूज होती है यहाँ? भूतिया, नेपाली एंड लेप्चा। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई, और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है बच्चों यहाँ? तमिल लैंग्वेज यूज होती है। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगरतला, और कौन सी भाषा यूज होती है यहाँ? बंगला। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ, और कौन सी भाषा यहाँ यूज होती है? हिंदी, उर्दू, अवधी एंड भोजपुरी। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून, और कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग? हिंदी एंड कुमाऊनी। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? कोलकाता, और कौन सी भाषा बोलते हैं लोग? बंगाली। नेक्स्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना, कैपिटल ऑफ तेलंगाना is Hyderabad, and the language used is Telugu. Okay, now these are the states capitals and the language spoken in these states. Now we will come to union territories and their capital. The first one is Andaman and Nicobar Islands. What is the capital of Andaman and Nicobar Islands? That is Port Blair. The second is Chandigarh. Chandigarh, and the capital of Chandigarh is itself Chandigarh. Next is Dadar and Nagar Haveli. Dadar and Nagar Haveli, and the capital is Silvassa. Next is Daman and Diu. Daman and Diu, the capital is Daman. Next is Delhi. Delhi, capital is itself Delhi. Next is Lakshadweep. The capital of Lakshadweep is Kavarati. Next is Pondicherry. And the capital of Pondicherry is Pondicherry itself. Next is Jammu and Kashmir. And the capital of Jammu and Kashmir is Srinagar. Next is Ladakh. And the capital is Leh. Okay, बच्चों, these are the UTs यानी कि Union Territories and their capital. These are 9 in numbers. India have 9 Union Territories, and these are the states, its capitals and the language spoken there. These are 28. Okay.
Now come to the topic states. There are 28 states in our country. Each state has its own government to look after the welfare of the people. Every state has its capital. Every state has a governor, chief minister, other ministers and senior government officers. जैसा कि आपने देखा कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है लोगों की देखभाल करने के लिए, लोगों का कोई भी मैटर है उसको सोल्ट आउट करने के लिए. हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और हर एक स्टेट की एक कैपिटल भी है. एवरी स्टेट हैज़ अ, अब गवर्नमेंट में, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स होते हैं और कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनसे मिलके स्टेट गवर्नमेंट बनती है. ओके, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट. राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है. उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइल सिक्किम हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री. और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है. यानी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और सिक्किम में बहुत कम लोग रहते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज, some parts of our country are directly under the control of the central government. These are called union territories. There are 9 union territories in India. कुछ पार्ट कंट्री के ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल में हैं. जैसे कि हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, उनकी अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे पास? 9. इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एंड लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप. ओके, कम टू द टॉपिक, वी विल रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. Central government, the government that runs our country is called the central or union government. जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन करती है, पूरी कंट्री को रन करती है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट. द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति. ही हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम. अब प्रेसिडेंट अपना सारा काम अकेले नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जो उसकी हेल्प करता है. द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज़ कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर. और जो इन मिनिस्टर्स का लीडर होता है, इस ग्रुप का हेड होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री. ओके बच्चों, आपको पता होगा हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी. यस, Mr. Narendra Modi is our Prime Minister. Now, the capital of our country is the place where the central government operates. जो इंडिया में, इंडिया की जो कैपिटल है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, यानी कंट्री को रूल करना होता है वो कैपिटल से करते हैं. तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली. और दिल्ली से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल करती है, ऑपरेट करती है. New Delhi is the capital of India. The President, Prime Minister and all other ministers and all important officials of the central government have their offices in the national capital. दिल्ली जो है वो न्यू दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है और जितने भी मंत्री हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट. State government. Each state of India has its own government and the head of the state government is the governor. He has a council of ministers to help him. The head of these ministers is called the chief minister. Each state has its own capital. The governor, the chief minister and all other important officials of the state government have their offices in the state capital.
स्टेट गवर्नमेंट, पहले हमने बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट का। हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है और जो उस स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है उसे गवर्नर कहते हैं, और उस गवर्नर के आसपास मिनिस्टर्स होते हैं, उसके पास भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो उसकी गवर्नर की हेल्प करता है स्टेट को रूल करने के लिए, स्टेट को ऑपरेट करने के लिए। द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, और जो गवर्नर की हेल्प करता है जो ग्रुप, उसके मिनिस्टर्स को, हेड को क्या कहते हैं बच्चों? चीफ मिनिस्टर, दैट इज मुख्यमंत्री। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन कैपिटल, हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, और जो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो स्टेट कैपिटल में रहते हैं और स्टेट कैपिटल से ऑपरेट करते हैं पूरी स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? अपनी स्टेट को ऑपरेट करना, अच्छे से लोगों की देखभाल करना, वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो कराना। और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है पूरे इंडिया की, पूरे देश की जनता को, पूरे देश के लोगों को उनकी वेलफेयर करना, उनकी देखभाल करना और उनके अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन उनसे फॉलो कराना। ओके, होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।